Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Namaste students. Today we are going to begin lesson number 2, effective letter writing and various types of letter writing. Before we move on, I want to tell you that please keep your textbook with you. आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखें और जहाँ पे भी मैं डेफिनेशंस आपको मार्क करने के लिए कहती हूँ वो आप मार्क करते जाए, या तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मार्क करने के लिए, नोट डाउन करने के लिए कहती हूँ, वो आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है? So let us begin lesson number 2, part 1. In the present age of internet, effective communication skills play a vital role in expanding business, individual and professional success. Modern methods and means of communication have almost diminished the boundaries of place and time. Modern world यानी कि जो हमारी present age है वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स में इतने चेंजेस हुए हैं एंड स्पेशली इन द मॉडर्न मेथड्स जो कम्युनिकेशन की है उसकी वजह से टाइम और प्लेस की जो बाउंड्रीज थी, दैट इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेंड समवन अ प्रॉपर मैसेज, दैट हैज बीन डिमिनिश्ड. इट वाज क्लियरली एब्सेंट नाउ. वंस यू वांट टू कांटेक्ट समवन, you can either WhatsApp them, you can message them, you can email them, so they will get instant message. So there is no limit for time and place. Different classes in the society look for various means of communication to stay connected constantly with one another and have accepted various means of communication. And especially अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं जो लोगों के, वहाँ पे the means of communication, method of communication has been different. Why? Because people prefer their own way to communicate. अलग अलग लोगों को जो भी convenient लगता है, किसी को मैसेज के थ्रू कोई जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है वो इम्पोर्टेंट लगता है, कोई ईमेल करता है. सो देर आर सो मेनी मेथड्स और वो अपने हिसाब से अलग अलग जो मेथड्स है उसमें से खुद के लिए जो कन्वीनियंट है उससे कनेक्टेड रहता है. एंड दिस वी हैव सीन इन दिस पेंडेमिक पीरियड, इन लॉकडाउन वी हैव सीन दिस कि यहाँ पे लॉकडाउन था लेकिन फिर भी लोग कनेक्टेड रहते थे एक दूसरे से. Either they can be connected with video call, they can connected with Zoom, they can connected with any other means. So it depends on the people which kind of method they prefer. Modern methods of communication are speedy, effective, economical and simpler, so are widely accepted and popular. Keeping in mind the attitude, nature, training, mental makeup and circumstances of people of India, and we evaluate the methods of communication present time, we observe that people of our country in the recent age largely rely on letter writing for business and official matters. Modern method जो है communication की, it is quite effective. जो speedy development हुआ है कि instantly you send an information and the person whom you are supposed to send, he will or she will receive it. तो ये एक speedy process हो चुकी है. Economical भी है कि आपने अगर for example if you have internet you can send thousands of email with that. तो ये economical भी है और simple है. आपको सिर्फ एक क्लिक के थ्रू आप कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरे इंसान के तक पहुंचा सकते हैं. एंड देयर इज नो लिमिट फॉर प्लेस. कोई भी दुनिया के कोई भी कोने में जो इंसान है उन तक हम कनेक्ट कर सकते हैं. तो आज हम थ्रू दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू इवेल्युएट, यहाँ पे इस चैप्टर में हम मॉडर्न मेथड है जो हमारे कंट्री के लोग कौन सी प्रिफर करते हैं. दे आर मोस्टली प्रिफर्ड official and business purpose. They are rely on letter writing.
ज़्यादातर आज भी हमारे देश में लेटर राइटिंग को बिजनेस के मामलों में प्रेफरेंस दी जाती है। दे प्रिफर टू गिव अ हार्ड कॉपी, टू सेंड अ हार्ड कॉपी। तो उसको हम इवेल्युएट करेंगे आज इस चैप्टर में। ऑफ कोर्स द फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग हैज चेंज्ड बट इट्स इंपॉर्टेंस हैज नॉट डिक्रीज्ड। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट चेंज हुआ है लेकिन उसका इम्पोर्टेंस जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। पहले जितना लेटर राइटिंग का इम्पोर्टेंस नहीं था, आज उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंस है। वाई? बिकॉज पीपल नाउ यूज टू सेंड द कॉपी to someone and they are used to have keep one copy with themselves। पहले लोग सिर्फ एक कॉपी भेजते थे और कोई प्रूफ नहीं था कि सामने वाले इंसान को वो कॉपी मिली है, लेटर मिला है या नहीं। नाउ दे आर सेंडिंग विथ रजिस्टर पोस्ट सो दे कैन साइन इट कि हाँ मैंने रिसीव किया है। किसने रिसीव किया है वो भी आ सकता है और जो सेंड करता है वो भी एक कॉपी अपने पास रखता है कि भाई सी आई हैव सीन यू दिस लेटर अर्लियर। तो ये प्रूफ होता है। तो लेटर राइटिंग का फॉर्म चेंज हुआ है लेकिन उसका इंपॉर्टेंस जरा भी कम नहीं हुआ। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे भी कोई भी चीज जैसे समझने के लिए उसकी हिस्ट्री समझना जरूरी है। तो यहाँ पे भी हम पहले लेटर राइटिंग की हिस्ट्री समझेंगे। The history of letter writing is quite ancient. In the olden days, pigeons were used for communication. Kings and emperors used to send messengers to send secret and confidential information. पहले के ज़माने में हमने हिस्ट्री में देखा है, आपने 7 to 10 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में देखा है कि कोई भी किंग्स थे, जो राजा महाराजा थे, वो लोग कबूतर के द्वारा या तो सीक्रेट मैसेजेस अलग अलग तरह से भेजते थे। उनके लोग होते थे एज अ मैसेंजर दे यूज्ड टू वर्क। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू सेंड सीक्रेट मैसेजेस व्हिच आर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दे यूज्ड टू सेंड इट ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज, पीसेस ऑफ क्लोथ्स एंड देयर आफ्टर पीस ऑफ पेपर। पहले के जमाने में पेपर नहीं था तो वो लोग कोई ट्री के पत्तों पे या तो फिर कपड़ों पे कोई भी तरह से मैसेज सेंड करते थे। During the British rule in India, well-planned and organized form was given to communication and letter writing. Post and Telegraph Department was started. As a result, the scope of letter writing expanded. और ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था तब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल प्लान्ड प्लेटफॉर्म मिला पोस्ट को और टेलीग्राफ को। उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ की सर्विसेज शुरू की और इससे क्या हुआ, लेटर राइटिंग का जो स्कोप था वो बढ़ गया। प्रॉपरली एक वेल फॉर्म्ड लेटर भेजने लगे लोग। पहले के ज़माने में सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन थी वही लिखी जाती थी और किसी के हाथ से आप भेजते थे। नाउ दे हैव स्टार्टेड द प्रॉपर मेथड टू सेंड अ लेटर। Thereafter, Indian government gifted 2 important services to the people. They are telephone and telegram. They were considered as modern means in those days. Letter writing was given much importance. और ब्रिटिश रूल के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या दो गिफ्ट दी, एक टेलीफोन दिया और दूसरा टेलीग्राम दिया, जो कंसीडर किया जाता था उस वक्त एज अ मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में तरीके से कि उस वक्त की जो एक मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम थी उसको टेलीफोन के द्वारा समझा जाता था या तो टेलीग्राम के द्वारा समझाया जाता था। और लेटर राइटिंग को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, envelope, etc. Hence, the most economical and simple means of letter writing got much popularity amongst people. क्योंकि टेलीग्राम या तो टेलीफोन जो है वो सबके घर में नहीं होता था उस वक्त। यहाँ पे आज ये सिचुएशन है that we are having mobile phones for each and every person in the family. ज़्यादातर घर में जितने लोग होते हैं उनके पास खुद का मोबाइल फोन या तो फोन होता है, सेल फोन होता है, लैपटॉप होता है, so they can communicate. बट पुराने ज़माने में आज़ादी के बाद भी इतनी फ्रिक्वेंटली लोग टेलीफोन यूज़ नहीं करते थे, तो पोस्ट कार्ड जो है, इनलैंड लेटर्स जो है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलने लगी। एक तो ये भी था कि वो इकोनॉमिकल था,
उसका इतना खर्चा नहीं होता था जितना टेलीफोन का बिल आता था, और सिंपल भी था। सब लोगों को टेलीफोन यूज करना ना आता हो, सब जगह पे वो फैसिलिटी ना हो, तो वो लोग जो है पोस्ट कार्ड या तो इनलैंड लेटर एनवेलप से सेंड करते थे, लेटर सेंड करते थे, और उसको एक बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी उस वक्त। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विसेज टू मेक द सर्विसेज स्पीडियर। Due to business, educational and social letter writing, the number of letters increased day by day, and as a result, the new form of distributing letters, popularly known as Angadiya and Courier, private service of delivering letters, got introduced. और इंडियन पोस्ट में जब टेलीफोन और टेलीग्राफ का एक नया दौर शुरू हुआ, एक नई सिस्टम शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? स्पीड पोस्ट सर्विसेज, जो स्पीडीली डिलीवर करते हैं लेटर्स को। क्यों? क्योंकि बिजनेस लेटर्स थे, एजुकेशनल लेटर्स थे, सोशल लेटर्स थे, उनका नंबर ऑफ लेटर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे दैट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू डू इट बाय देमसेल्फ ओनली, एंड दैट इज व्हाई what they have started two different services, that is Angadiya services and courier services. Both are private services. आज भी courier services हम इतना प्रेफर करते हैं, कुछ भी कहीं पे भी भेजना हो, we used to send it through courier। और Angadiya services जो है वो अब इस समय में लिमिटेड हो गई है just for doing financial transaction। आपको कहीं पे पैसे भेजने, then you can send it through आंगड़िया, तो वो स्पेशली अब जो है वो पैसों की लेन देन के लिए यूज होता है। तो ये दोनों सर्विसेज जो है वो प्राइवेट सर्विसेज हैं, ये गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, द मोस्ट मॉडर्न सर्विस ऑफ लेटर राइटिंग कॉल्ड ईमेल केम इनटू एक्सिस्टेंस। और सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो है ईमेल राइटिंग, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग। ईमेल का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसको लेटर राइटिंग के जैसे ही मानते हैं कि एक पार्ट मानते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग ओनली, एंड इट इज द मोस्ट मॉडर्न सर्विसेज जो अभी तक चल रहा है, ईमेल राइटिंग। लेकिन ये कब शुरू हुआ? आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग की लाक्षणिकता क्या है? लेटर राइटिंग हैज still retained its importance in the modern age of communication. Its characteristics play a vital role in retaining of its importance. The characteristics of letter writing have placed letters at a very high place as a means of correspondence in communication sector. Letter writing has become an important element in business sector. आज भी जब कई सारी मॉडर्न मेथड्स है कम्युनिकेशन करने की, स्टिल लेटर राइटिंग का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना पहले हुआ करता था, शायद उससे भी ज्यादा। स्पेशली इन द बिजनेस सेक्टर, हमेशा कोई भी काम बिजनेस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप करते हैं तो वो थ्रू लेटर राइटिंग ही होता है। इन अ रिटर्न ऑन अ हार्ड कॉपी दे यूज टू प्रीफर टू कम्युनिकेट विद द बिजनेस ग्रुप। तो उसके लिए शायद उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वही इम्पोर्टेंट थे, जिसकी वजह से लेटर राइटिंग जो है वो आज तक इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। इट वॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर राइटिंग विच हैव प्लेस्ड लेटर एट अ वेरी हाई प्लेस एज अ मीन ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस इन कम्युनिकेशन सेक्टर। और उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही है जिसने लेटर राइटिंग को आज भी सबसे ऊपर यानी कि सबसे हाईएस्ट यूज कम्युनिकेशन मेथड को बना दिया है। Following points may be enumerated as characteristics of letter writing. नीचे दिए गए जो पॉइंट्स है उसको हम लेटर राइटिंग कंसीडर कर सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला जो है, इट इज अ सिंपल एंड रीजनेबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक, इसका लाक्षणिकता है, वो है ये बहुत रीजनेबल है, सिंपल है। टू कम्युनिकेट विथ एनीवन, कोई भी इंसान चाहे वो इतना पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन लेटर राइटिंग जो है वो किसी के थ्रू भी लिखवा सकता है। सो दे कैन कम्युनिकेट और
रीजनेबल है कि आप किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, चाहे उसके पास, कई बार हम देखते हैं कि छोटे गांव जो है वहाँ पे मोबाइल फोन अभी भी इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता, टेलीफोन नहीं होता, इंटरनेट नहीं होते, देन इट इज अ सिंपल वे टू कम्युनिकेट। इट इज इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फॉर द राइटर एंड रिसीवर ऑफ द लेटर। और दोनों को, राइटर जो है लेटर का और रिसीवर जो है, उनके लिए ये बहुत यूजफुल मीन है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्रूफ रहता है दैट व्हाट यू हैव सेंड इट। और राइटर भी कह सकता है कि मैंने भाई आपको पूरी तरह से डिटेल में लिख के आप जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो दी है। सो इट इज इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फॉर बोथ द साइड। रिसीवर भी बता सकते हैं कि भाई आपने लेटर में कोई चीज जो है वो एक्सप्लेन नहीं की थी या तो खुलकर नहीं बताया था, और राइटर भी कह सकता है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बताए थे। It has no boundaries of place and time. Yes, that is true. Just like our internet and mobile phone or WhatsApp messages, even we can send letter to any country and at any time. हम कोई भी देश में, कोई भी दुनिया के कोई भी कोने में हम लेटर सेंड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये बार बार हम पढ़ भी सकते हैं। जैसे लेटर हमें मिला, एक बार हमने पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, so we can keep it. That is also one of the benefit. It is recognized as the evidence of information for which the letter is written. जैसे कि मैंने आगे बताया कि ये एज अ प्रूफ हम यूज कर सकते हैं लेटर को। एक एविडेंस हो जाता है कि भाई मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी मैंने उतना ही काम किया है। सो एज अ एविडेंस वी कैन यूज इट। इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ लेटर कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। और अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी इंसान, बाहर का इंसान, ये लेटर पढ़े जो आप किसी को भेज रहे हैं, देन यू कैन जस्ट नीड टू पुट अ कॉन्फिडेंशियल मैसेज, और जिसके लिए आपने भेजा है वही इंसान इसको पढ़ेगा। सो इट कैन बी कॉन्फिडेंशियल एज वेल। If required in future, the concerned information can be reused. और अगर फ्यूचर में आपको लेटर मिला, आपने अगर वो संभाल के रखा है और फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट हुई, तो आप उसको रीयूज कर सकते हो, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। लेटर्स आर इजीली सेंड एंड रिसीव्ड, दैट इज ट्रू। किसी को अगर टेक्नोलॉजी का यूज करना नहीं आता तो वो सिंपली लेटर सेंड कर सकता है थ्रू द पोस्ट, एंड व्हेन द पोस्टमैन यूज टू डिलीवर इट, यू कैन रिसीव इट इन अ सिंपल वे। कई लोग होते हैं जिनको ईमेल सेंड करना नहीं आता या तो ओपन करना नहीं आता, कंटेंट जो हमने भेजा है अटैच करके वो डाउनलोड करना नहीं आता, देन इट इज अ सिंपलर वे टू रिसीव एंड सेंड इंफॉर्मेशन इजीली। इट इज अ लिंक बिटवीन राइटर ऑफ लेटर एंड इट्स रिसीवर। और एक पर्सनल टच रहता है। आप अगर किसी को लेटर सेंड करते हो, सो इट शोज योर कंसर्न फॉर दैट पर्सन। सो इट इज, वी कैन से दैट इट कैन बी linked to people while you send a letter. The writing of letter establishes an image of the firm or institution. Now, especially in business letters, they used to send it on a letterpad of that company. कोई भी कंपनी के लेटर पैड पे ही ये इंफॉर्मेशन जो उनको आप भेज रहे हो वो वहाँ पे सेंड की जाती है थ्रू द लेटर पैड। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक इमेज बनती है कंपनी की। Whatever you are doing a very in a professional way. So it build an image. The way you send the information, the way the content has been written. So it shows that you can rely on that company. It shows the reliability of the company. Letter works as its silent representative of the concerned firm. और लेटर जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है। हम कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपको लीव चाहिए, यू जस्ट सेंड इट थ्रू सिंपल व्हाट्सएप मैसेज एंड यू आर राइटिंग अ प्रॉपर एप्लीकेशन। सो इट शोज हाउ प्रोफेशनल यू आर एंड इट शोज द लेटर कैन बी योर रिप्रेजेंटेटिव एज अ पर्सन। You are sending your representative in your written format. So that is why letters are important. So these are the 10 characteristics of letter writing. Now we have seen enough as the history of letter writing. We have seen enough about characteristics of letter writing. अब देखते हैं types of letter writing which can
clearly seen through the following table on your screen. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक चार्ट दिया गया है टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग करके. उसमें मेन दो पार्ट है, वन इज फॉर्मल, सेकेंड इज इनफॉर्मल. तो ये दो पार्ट में हम पहले चेक करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स क्या होता है? जो आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, आप अपने दोस्तों को लिखते हैं, दैट इज इनफॉर्मल लेटर्स. जहाँ पे लेटर्स ऑफ ग्रीटिंग, किसी को मुबारकबाद देनी है फॉर बर्थडे विशेस, फॉर देयर सक्सेस, एनीथिंग. कंडोलेंस, किसी की डेथ पर आप कंडोलेंस देते हैं तो सिंपैथी देते हैं, उसके लिए लेटर लिखे जाते हैं. लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट किसी ने अगर नया घर लिया है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हुआ एक लेटर लिख सकते हैं. इन्विटेशंस टू इनवाइट समवन एट योर प्लेस और एनी अदर प्लेस, इनवाइटिंग ऑन अ पार्टी, एनीथिंग, दोज आर इनफॉर्मल लेटर्स जो आप अपने दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं. नाउ लेट अस सी द फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स के भी दो सब पार्ट है. वन इज बिजनेस लेटर्स and second is official letters. Now what is the difference between these two? Business letter, official letter, दोनों ही यूज तो बिजनेस के पर्पस पे ही होते हैं, लेकिन उनका मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि बिजनेस लेटर जो है उसका एक रीजन होता है कि आप अपना बिजनेस जो है वो एक्सपांड करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड आप बिजनेस लेटर लिखते हैं. लेकिन ऑफिशियल लेटर्स जो होता है वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए लिखते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. बिजनेस लेटर्स जो है, लेटर्स रिटन विद द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग और एक्सपांडिंग बिजनेस. आपके बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या तो आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए जो आप लेटर्स लिखते हैं, लाइक लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, लेटर्स ऑफ ऑर्डर, लेटर्स ऑफ एजेंसी. आप किसी को बल्क में ऑर्डर देना चाहते हैं या तो आप अपनी एडवर्टाइज करते हैं दैट आई हैव अ फैक्ट्री एंड आई कैन सेंड यू द ऑर्डर फॉर एनी सर्टेन थिंग, तो वो आप एक्सपांड करते हैं या तो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं. लेकिन ऑफिशियल लेटर्स जो है, लेटर्स रिटर्न टू द इंस्टीट्यूशंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर. कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं, दे आर ऑफिशियल लेटर्स. लाइक एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन आप अगर देते हैं, लेटर्स रिगार्डिंग राशन कार्ड, वाटर प्रॉब्लम्स, आप जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो आप लेटर लिखते हैं कि भाई मेरे घर के पास स्ट्रीट लाइट नहीं हो रही या तो न्यूसेंस बहुत है, पार्किंग एरिया का प्रॉब्लम है, दोज आर ऑफिशियल लेटर्स. आप अगर कोई लीव एप्लीकेशन देते हो अपनी फर्म को तो वो भी एक ऑफिशियल लेटर हुआ, दैट इज नॉट बिजनेस लेटर. क्लियर विथ इट? टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग. लेटर्स आर रिटन विथ मैनी ऑब्जेक्टिव्स. लेटर्स written for business, administration or government matters are called formal letters. The letters written for official matters and to maintain the relation are called informal letters. तो ये दोनों जो है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स की डेफिनेशन है, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है. क्लियर? Formal letters have their own specific format to be maintained, whereas it is not necessary to have a format for informal letter. तो यहाँ पे डेफिनेशन हम देखी कि जो भी लेटर्स है बिजनेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट मैटर्स के लिए, वो फॉर्मल लेटर है. लेकिन जो सोशल मैटर्स के लिए या तो रिलेशन मेंटेन करने के लिए लेटर लिखे जाते हैं, दे आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स. और फॉर्मल लेटर का एक प्रॉपर फिक्स स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, जबकि इनफॉर्मल लेटर का ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप फॉर्मेट मेंटेन करें या ना करें, दैट इज फाइन. बट फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, यू हैव टू मेंटेन द फॉर्मेट. द मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर्स. When there is an exchange of information between individual and other between two institution or between individual and institution through letter writing, it is known as correspondence. Mark this definition. Correspondence की जो definition है वो आपको mark करनी है. यहाँ पे क्या बताया कि एक जो exchange है information का between two individual, between two institution और between two business firm या तो between individual and institution, that is called correspondence, that is called communication. लेकिन when this correspondence is carried out for business purpose, it is called business correspondence.
लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन सेंड होती है, रिसीव होती है, एक्सचेंज होती है, वो बिजनेस पर्पस के लिए होना शुरू हो जाए, देन इट इज कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस और अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस. बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, promotion of the product, sell, advertisement, business negotiation, grievance, compromise, adjustment, etc. are covered in business correspondence. तो business correspondence कौन कौन सी तरह के होते हैं? तो ये सारे उसके टाइप्स है. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के बिजनेस लेटर्स के टाइप है, जिसमें आएंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो भी हमको लेटर फॉर्म में ही मिलता है. प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो, देन दैट इज द वे. सेल करना हो, बिजनेस निगोशिएशन होते हैं, जो ग्रीवेंस यानी कि कंप्लेन लेटर्स होते हैं, कॉम्प्रोमाइज होता है, एडजस्टमेंट्स होते हैं. सो दिस आर द टाइप ऑफ बिजनेस लेटर्स आर कवर्ड इन द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस. Certain specific terms are used in business correspondence. Its vocabulary is different. Now this is very important कि इसकी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की, बिजनेस लेटर्स की एक प्रॉपर वोकेबुलरी होती है. आप जो डॉक्यूमेंट लिखते हो वो नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वी कैन नॉट यूज इट. वी हैव टू यूज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर अ बिजनेस लेटर्स. द पर्पस, so we can say that communication that take place with the purpose of business in a proper format and having specific vocabulary is known as commercial communication. तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो communication होता है, whatever the communication that take place with the purpose of business, उसका communication करने का reason जो है वो business है, with a proper format, एक proper format के साथ और proper vocabulary के साथ, specific vocabulary के साथ, that is known as commercial communication. This definition also you have to mark. Importance of business letters. Business is one of the most important pillars of the financial assets of any company. It is also a means to obtain employment and income for people. The trends of business keep on changing, and in the changing trend one has to be in touch with customers related to business, manufacturers, distributors, firms, institutions, government and its machinery to survive in business and for the development of business. अब business जो है वो किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं कंपनी का, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप कोई कंपनी शुरू करते हैं लेकिन उसमें बिजनेस ही नहीं आ रहा है, आपको कोई ऑर्डर नहीं दिया जाता, देन हाउ यू विल सर्वाइव. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इट इज़ ऑल्सो मीन टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम फॉर पीपल. और ये एक रास्ता है जिससे आप आपकी कंपनी में जो काम करते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो और आप इनकम भी कमा सकते हो, खुद के लिए भी और उन लोगों के भी लिए भी एक जरिया होते हो पैसे कमाने का. सो दैट इज़ वाई ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now the trend for business is keep changing. बिजनेस का जो ट्रेंड है वो चेंज होता रहता है, समय के साथ वो चेंज होता है. पहले जो चीज़ें चलती थी, पहले जो चीज़ों की मांग थी, डिमांड थी, इतनी अब नहीं है. अब कोई नई चीज़ फैशन में है, कोई नई चीज़ पॉपुलर है, देन इट स्टार्टेड चेंजिंग. डे बाय डे ये चेंज होता ही रहता है. इसीलिए द बिजनेसमैन has to be in touch with customer related to business. जो कस्टमर है उनके साथ भी उनको कांटेक्ट में रहना है, उनके साथ भी रिलेटेड. they have to be in touch with the customers, not only customers but the manufacturers of raw material, distribute जो करते हैं आपकी प्रोडक्ट को, firms, those who have taken franchises, institution, government. कितने सारे लोगों के साथ आपको कनेक्टेड रहना होता है एक बिजनेस चलाने के लिए. तो और सिर्फ उतना ही नहीं, उसको डेवलप करने के लिए भी आपको एक बिजनेस मेंटेन करने के लिए कस्टमर, रॉ मटेरियल जो आप लेते हो उनके साथ, आपके जो एम्प्लॉय है उनके साथ, डिस्ट्रीब्यूटर है जो एडवर्टाइज करते हैं, फॉर्म्स है जिसके साथ आप कनेक्टेड है, आपके जो अकाउंट्स देखते हैं, सीए है, गवर्नमेंट है. फॉर द परमिशन यू नीड टू बी इन टच विद गवर्नमेंट.
और जो आपकी मशीनरी है वो भी इतनी इम्पोर्टेंट कि आपको सबके साथ यू हैव टू बी इन टच विद देम कॉन्स्टेंटली. Business letters play a vital role in developing and spreading business by being in constant touch and reading minds of the people. और business letter जो है वो बहुत ही एक important रास्ता है to develop and spread your business all around. हमने कई बार देखा है कि न्यूज़पेपर जो आता है उसके साथ एक लिफलेट आता है, एक एक्स्ट्रा पेज आता है जहाँ पे कोई कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होती है. तो वो क्यों होता है? वो भी एक तरह से बिजनेस लेटर ही है, बिकॉज दे आर सेंडिंग. हाँ, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है उसका, लेकिन वो एडवर्टाइज पर्पज है, इसीलिए उन्होंने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया. लेकिन वो भी एक रास्ता है टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग योर बिजनेस, बीइंग इन अ कांस्टेंट टच एंड रीडिंग माइंड ऑफ पीपल. आप एक अवेयरनेस क्रिएट करते हो, आप पीपल को अवेयर करते हो अपने बिजनेस से. और एक बार अगर लोग जो है, कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करते हैं, then you can keep changing the product for a betterment of people. लोगों की डिमांड के अनुसार आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं. Business letter works as a salesman and boosts business activities. They create prestige and good image by giving information to customer regarding the product. There is no exaggeration if we say that business letters are the most simple, economical and effective medium of advertisement for any business firm. Business letters जो है वो एक सेल्समैन की तरह काम करते हैं आपके बिजनेस के लिए. आपकी एक प्रेस्टीज बिल्डअप करते हैं, आपको एक गुड इमेज देते हैं बिटवीन द कस्टमर. वाई? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट. आपके जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है जो आप कस्टमर्स को देते हैं, उसके लिए बिजनेस लेटर जो है वो एक प्रेस्टीज क्रिएट करते हैं. और ये कहना ज़रूरी है कि आपका जो बिजनेस लेटर है, द वे यू सेंड द बिजनेस लेटर, द चॉइस ऑफ वर्ड्स, योर फॉर्मेट, एवरीथिंग एक तो सिंपल वे है, इकोनॉमिकल है, इफेक्टिव है, और इट इज़ अ क्वाइट बिग मीडियम टू एडवर्टाइज योर बिजनेस फर्म. आपकी जो कंपनी है उसको एडवर्टाइज करने के लिए इट इज़ वेरी सिंपल, इफेक्टिव मीडियम टू प्रमोट योर कंपनी. Briefly, we can say that the business letter is an inseparable part of business activity. कोई भी business activity जो आप कर रहे हो उसमें business letters is inseparable. आप separate नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे business में मैं कोई official letters, business letters जो है वो नहीं लिखूंगा, मेरा जो communication होगा वो letters के through नहीं हो सकता. तो ये आप नहीं कह सकते. You have to use business letters, you have to use formal letters for communication. You cannot work without it. आपको उसके साथ ही काम करना पड़ता है. Okay students, here we end the first part of your lesson number 2, right? In the next part we will see the effective business correspondence, characteristics of business correspondence, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. आपको इस वीडियो के साथ जो वर्कशीट भेजी जाएगी उसमें जो क्वेश्चंस है वो उसके आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं. क्लियर विथ इट? हियर वी एंड आवर वीडियो. हैव अ ग्रेट डे एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.